Hello students, today we will continue second part of electoral politics. In first part of this chapter, we had discussed one example of Lokdal party and uh, the promises committed by Chaudhry Devilal, and due to that promise and how Lokdal party and its allies got 76 seats out of 90 seats in Haryana. With the help of this, uh, it is quite clear that how elections are important and how people can defeat any political party, or how people can support any political party. Now, here we have to discuss few more topics of the same chapter in second part of this video. What makes an election democratic? Is it good to have political competition? These are the two questions. We will try to find out answers for these two questions. Let us see the first question. What makes an election democratic? Elections can be held in many ways. In different countries, elections are held. Earlier, monarchy system was there. That means king's rule, राजा का रूल होता था. उसमें कोई इलेक्शन नहीं होते थे. But in today's world, in most of the countries, elections are held. But whether that election is democratic or non-democratic, that we have to understand. Now, conditions of a democratic election. When we will call the election system democratic, डेमोक्रेटिक हम इलेक्शन सिस्टम को कब कहेंगे, इसको समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स देखने पड़ेंगे. फर्स्ट, everyone should be able to choose, means every person should have a right to give vote. तभी तो उसे लीडर चूज करने का, पार्टी चूज करने का अधिकार मिलेगा. दिस मीन्स दैट everyone should have one vote and every vote should have equal value. ये तभी होगा जब हर आदमी को वोट देने का अधिकार होगा और उस वोट की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी. पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट. पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, different political parties are in India and they all should be free, like Bharatiya Janata Party, Congress Party, and many other political parties are there. At national level, at regional level, we find number of political parties. More than 700 political parties are in India. उन सबको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का अधिकार होना चाहिए और कोई भी कैंडिडेट, कोई भी लीडर, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, सबको अधिकार होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ सके. फ्री टू कॉन्टेस्ट मतलब इलेक्शन लड़ सके, जीत सके. देन इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली. मतलब कि जैसे इंडिया में इलेक्शन नॉर्मली 5 years के बाद होता है. So this is after every 5 years we have election in center and in state. At both the places we have election after 5 years regularly. So on this basis we can say that India is a democratic country. Next point, a candidate preferred by the people should get elected. कैंडिडेट प्रिफर्ड यानी कि जिस कैंडिडेट को लोग चाहते हैं. अब लोग चाहते हैं का मतलब जिसको ज़्यादा वोट लोग देते हैं उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलना चाहिए, यानी जीता हुआ मानना चाहिए. इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर. फ्री एंड फेयर मैनर मीन्स
there should be not no pressure on any candidate, no pressure on any voter. उनको फ्री होके किसी भी पार्टी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी देनी चाहिए, वो किसी के दबाव में वोट न डालें। जहाँ पे ये सारे फीचर्स होते हैं, इलेक्शन रेगुलरली होता है, कैंडिडेट्स जो जीतता है, सबसे ज़्यादा वोट लेता है, उसको जीता हुआ माना जाता है। जहाँ पे फ्रीडम होती है वोट देने की, फ्री एंड फेयर मैनर में, वो जहाँ पे ये सारे पॉइंट जो हमने 5 पॉइंट देखे, ये सारी चीज़ें होती है, तो उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। लाइक इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री because we find all these features in India. Now, we will try to find out answer for the next question. Is it good to have political competition? क्या political competition अच्छा है या होना चाहिए? Let us understand this. Elections have political competition. ये तो एक फैक्ट है कि इलेक्शन में पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स। अब ये अलग अलग रूप में कंपटीशन होता है और एंड एट डिफरेंट लेवल्स, क्योंकि इलेक्शन भी अलग अलग लेवल पे होता है। एक लोकल इलेक्शन होता है, एक स्टेट लेवल का इलेक्शन होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होता है। सो एट एवरी लेवल कंपटीशन इज देयर and all these competitions are of different types. At the constituency level, अभी constituency क्या होती है? See, every state is divided into various parts. In fact, entire country is divided into various parts for Lok Sabha and state assembly election. और एक कंस्टिट्यूएंसी से, यानी कि एक एरिया से एक कैंडिडेट इलेक्ट होके आ सकता है। दिस इज द वे हाउ कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड। ठीक है, मैंने बताया कि पूरे इंडिया को पार्ट्स में बांट दिया है और हर कंस्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट इलेक्ट होके आता है। सो दिस इज कंस्टिट्यूएंसी। इलेक्शन में कितने भी कैंडिडेट्स, कितनी भी पार्टियां लड़ सकती है, लेकिन कैंडिडेट एक कंस्टिट्यूएंसी से एक ही जीत के आएगा जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। इट मेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन एमंग सेवरल कैंडिडेट्स। इसी कारण से कंपटीशन होता है कि भाई सब जीतना चाहते हैं, 10 कैंडिडेट हैं और सीट तो एक ही है, सो उनमें आपस में कंपटीशन हो जाता है। इफ देयर इज नो कंपटीशन, इलेक्शंस will become pointless. यदि कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शन का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि किसको जिताएं, किसको हराएं, कौन सा कैंडिडेट पीपल के चॉइस का है, ये कैसे पता चलेगा? सो उसके लिए इलेक्शन होना जरूरी है, कंपटीशन होना भी ज़रूरी है ना। An electoral competition, this may have two type of impacts. एक है demerits, यानी कि जो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो है demerits उसे कहते हैं। It creates a sense of disunity and factionalism. Disunity से मतलब एक डिवीजन सा हो जाता है, पार्टी के हिसाब से लोग डिवाइड हो जाते हैं, कई बार रिलीजन के हिसाब से लोग वोटिंग करने लगते हैं, वो डिवीजन हो जाता है। समटाइम्स पीपल वोट अकॉर्डिंग टू कास्ट, सो इन दैट वे ऑल्सो सोसाइटी इज डिवाइडेड। सो समटाइम्स व्हेन पीपल आर फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ पैरामीटर्स बिफोर गिविंग वोट, then it give rise to disunity. Different political parties and leaders often level allegations against one another.
एलिगेशंस, एक दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं. इफ यू सी lectures of leaders just before the election, you will find that एक दूसरे के ऊपर वो अलग अलग इल्ज़ाम लगाते हैं. So that looks very bad and they use very bad words against each other. जितना एक दूसरे को गिरा सकें वो करने का कोशिश करते हैं. So this is one negative aspect of electoral competition. Then third point, parties and candidates often use dirty tricks to win elections. Election जीतने के लिए वो किसी भी हद तक चले आते हैं, किसी भी dirty tricks को यूज करते हैं. अब वो dirty tricks क्या हो सकती है? किसी का मर्डर करा दिया, जब उन्हें ये पता है कि भाई जब तक ये रहेगा तो हम जीत नहीं सकते, और उसका किसी का मर्डर करा दिया. मेनी टाइम्स वी हियर दिस टाइप ऑफ न्यूज दैट सो एंड सो लीडर वाज किल्ड बिफोर इलेक्शन. तो ये सारी चीज़ें, ये डर्टी ट्रिक है. दिस इज नॉट जस्टिस, दिस इज नॉट द राइट वे टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. इट इज अ रॉन्ग वे टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. Some good people who may wish to serve the country do not enter this field. Sometimes what happens, some good people are there who are very able, very good for the country, but they don't want to enter into politics because in India politics एक बहुत ही बदनाम चीज़ होती जा रही है क्योंकि उसमें dirty tricks यूज होते हैं. So that is why sometimes good people don't want to enter in this type of competition. And last point, they do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. वो good people want to do competition, no problem in that, but they don't want unhealthy competition. यहाँ unhealthy से मतलब वही dirty tricks है जहाँ पे एक दूसरे पे कोई एलिगेशन लगाना, ब्लेम लगाना विदाउट एनी रीज़न, किसी को ज़बरदस्ती नीचे दिखाना इलेक्शन जीतने के लिए. सो दैट इज अनहेल्दी कंपटीशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर एस्पेक्ट ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन. इसमें हम मेरिट्स की बात करेंगे. मेरिट्स यानी ऑल द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन. इलेक्शन के जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. इसमें फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल कंपटीशन गिव्स अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट गुड लीडर्स. सो एक हमें एक मौका मिलता है कि हम जैसे 10 कैंडिडेट्स हैं तो उसमें से सबसे अच्छा कौन है हमारे हिसाब से उसको हम इलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ वन the most important feature of electoral competition. Next point, political leaders have to prove themselves in electoral competition. Now if any leader want to win election, they have to prove themselves. उन्हें अच्छा काम करके दिखाना पड़ेगा तभी उनको वोट मिलेंगे, नहीं तो उनको वोट नहीं मिलेंगे. और एक बार वो जीत भी गए झूठे वादे करके तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, द रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन बेनिफिट द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स. इससे पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को भी फायदा होता है, उन्हें भी अच्छा करने का मौका मिलता है. उन्हें भी अपने एक बार हार भी जाते हैं तो दोबारा वापस कंपटीशन में आने के लिए मौका मिलता है क्योंकि इलेक्शन हर 5 साल के बाद होता है. सो दे गेट अपॉर्चुनिटी टू कम बैक बाय डूइंग पॉजिटिव थिंग्स फॉर द सोसाइटी, गुड थिंग्स फॉर द सोसाइटी. नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवार्डेड फॉर देयर सर्विसेज. अब ये रिवार्डेड कैसे है? पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिवार्ड कैसे मिलते हैं? पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन में जीतती है
तो वही उनके लिए रिवार्ड है. So when political parties win, they come in majority, they form government. Many leaders become ministers. This is the reward for political leaders, or you can say political parties. So this is all about this second part of this chapter, in which we have discussed mainly two important questions. Then in the third part we will continue this chapter. Okay. Thanks. Have a nice day.